جیسا کہ بھائی پرویز صاحب نے میرا تعارف کراتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ میں دہلی سے مفتی الرحمان عزیز ایک اخبار کا گروپ ایڈیٹر پیغام نامہ وطن کا جو ملک کے الگ الگ جگہوں سے شائع ہوتا ہے. یہاں پر بہت خوش نصیبی کی بات آج میرے لیے خاص طور سے یہ ہے کہ الحمدللہ جو میں نے ایک حرف سے شروع کر کے ایک کوشش کی تھی, مجھے خود یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے یہ کام لے گا. وہ حرف لفظ اور لفظ جملے بنتے گئے اور الحمدللہ رب العالمین بہت فخر محسوس کر رہا ہوں کہ آج وہ 800 صفحات پر مکمل کتاب جذبہ شاہین ہے جس کے لیے ہم لوگ یہاں پر اکٹھا ہوں. بہت پہلے سے میری کوشش تھی کہ اس کے تعلق سے کوئی خاص وقت دستیاب ہوتا, ہم لوگ اکٹھا ہوتے اور اس کا اجرا سب سے پہلے آپا عالمہ ڈاکٹر نورہ شیخ صاحبہ کے ہاتھوں سے ہوتا تو کہیں نہ کہیں میری محنتوں کا ایک ثمرہ مجھے مل سکتا تھا. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز مقدر کر رکھا تھا, یہ چیز موجود پذیر ہوا. میں دل سے شکر گزار ہوں آپ تمام لوگوں کا, آپا عالمہ ڈاکٹر نورہ شیخ صاحبہ کا اور اللہ رب العالمین کا. یہ کتاب 800 صفحات پر مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ 11 ابواب پر مشتمل ہے جس کو لگ بھگ 2 سال کی بے انتہا محنت کے ساتھ میں نے یعنی مفتی الرحمان عزیز نے اپنی تمام تک کوششوں سے, آپ یہ سمجھ لیں کہ چھوٹی چھوٹی موتیوں کے ذرات کو اکٹھا کرتے ہوئے میں نے ایک کوہ نور بنانے کی کوشش کی ہے جس کا نام جذبہ شاہین رکھا ہے. وہ جذبہ شاہین جس کو علامہ اقبال نے اپنے تمام اشعار میں بہت اچھا مقام دیا ہے, اسی سے متاثر ہو کر کے میں نے وہ نام جذبہ شاہین دیا ہے. اور وہ جذبہ شاہین علامہ ڈاکٹر نورہ شیخ صاحبہ کے تمام افعال و کردار, ان کے حوصلوں اور ان کے تمام تک کوششوں پر الحمدللہ وہ چیز ثابت آتی ہے. لہذا یہ تمام چیزیں ہیں. آپ میڈیا برادری کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ تجزیہ فرمائیں گے اس کتاب میں کیا چیز آئی ہے, قارئین اس کو پڑھیں گے اور بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پرویز بھائی خود اس پر تبصرہ تحریر فرمائیں گے کہ اس میں ہم نے جو کوشش کی ہے اس پر ہم کہاں تک کامیاب ہیں. ابھی تک اس کتاب کی ڈیمانڈ میں, اس کتاب کے مطالبے میں اتنی بڑی تیزی آئی ہے کہ جو میں نے 1000 کتابیں چھاپی تھی وہ لگ بھگ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بک ہو چکی ہے. تو میں یہ خوشخبری سناتے ہوئے آپ لوگوں کو میں اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دوسرا ایڈیشن بھی شائع کرنا پڑے گا, کیونکہ مطالبات الحمدللہ بدستور جاری ہیں اور آج یہ وقت ہونے کے بعد میں اس کو لوگوں کے ہاتھوں میں دینے کی شروعات کر سکوں گا. اور اسی چیز کا انتظار تھا انشاءاللہ تعالیٰ آپا عالمہ ڈاکٹر نورہ شیخ صاحبہ اس کا اجرا فرما دیں تو میں اس کو کھول کر کے تمام لوگوں کو پیش کر سکوں. تو یہ تھی تمام چیزیں. اس موقع پر ہمارے 2-3 دوست جو نہیں رہے اس دنیا میں, جن کو میں شہیدان ہند گروپ کہتا ہوں, ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے, جو میرے بہت ہی معزز مکرم اور بہت ہی مقرب لوگ تھے, ان لوگوں کو آپ لوگ خراج تحسین پیش کیجیے. موت العالم موت العالم میرے بہت مقرب دوست مولانا ابراہیم صاحب مدنی رحمہ اللہ تعالی, بھائی سلیم صاحب, بھائی دلالت حسین صاحب, آپا نرگس شیخ صاحبہ, ان لوگ ہمارے درمیان میں نہیں ہیں, ان کو ہم ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے. لہذا ان تمام باتوں کے ساتھ علامہ اقبال صاحب کے ایک شعر کے ساتھ میں آپ تمام لوگوں کو نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا. یہ کتاب انہی اشعار کے ساتھ میں آپ لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں, قارئین کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں, اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ عالمہ ڈاکٹر نورہ شیخ صاحبہ اس کا اجرا فرما کر اس کا افتتاح کریں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि मैं कई दिनों से कई लोगों से बात सुन रही थी कि आपके नाम से एक किताब लिखी गई है जिसका नाम जज्बा शाहीन है। यहाँ तक कि जब मैं अंदर खैर खाने में थी उस वक्त भी कुछ लोग मुझे खबर देते थे, मगर मैं अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि मैं उस काबिल नहीं हूँ कि मेरे बारे में कोई किताब लिखी जाए। मगर आज मैं सुनकर, क्योंकि अभी तक मैंने देखा भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, तो सुनकर मुझे इतनी ताज्जुब हो रही है कि 800 सफ़ात की जो किताब है, हमारे भाई मुतीउर रहमान अजीज ने इसको तस्नीफ किया है। और बड़ी खुशी की बात है कि मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आने वाले नस्लों के लिए ये किताब हिदायत बन जाए, आने वाले तमाम लड़कियों के लिए ये किताब एक हिदायत का जरिया बन जाए। और हमेशा किताब में जो भी लिखा गया है इंशाअल्लाह वो पढ़ेंगे। मगर जो मेरी जिंदगी की किताब थी वो इससे शुरू हो गई कि अल्लाह की जात पे भरोसा, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरी मौत भी उसी के साथ हो जाए और कोई ख्वाहिश दुनिया में मेरी नहीं रही। और दूसरी बात कि मैं चाहती हूँ कि दुनिया की हर औरत, हर लड़की एक अंदर एक जज्बा रखे, वो जज्बे को लेकर वो चले तो अल्लाह ताला की उसको ज्यादा मदद और साथ होती है। जिंदगी के अंदर इंसान को कई तकालीफ आते हैं, कई मुश्किलें आते हैं, कई कई तरह के मज़ालिम उसके ऊपर होते हैं। जब वो अल्लाह पर तवक्कल करता है और ये कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ के साथ है, तो जरूर जो है इंसाफ की जीत होती है। तो मैं इसके साथ साथ आज एक खुशी की बात है कि मैं हमारे हिंदुस्तान की एक नागरिक होने के बाद है, एक हिंदुस्तान की महिला होने के बाद है, मैं फख्र हासिल करती हूँ अपने आप को कि हमारे हिंदुस्तान में रहते हुए हमको तमाम हुकूक मिले। और मैंने अपनी जिंदगी का आगाज 1998 में शुरू किया था। वो आवाज ये थी कि औरतों को भी हुकूक बराबरी के हैं, वो इस्लाम में रहते हुए अपने मजहब को फॉलो करते हुए वो इंजीनियर बन सकती है, वो डॉक्टर बन सकती है, वो आलिमा बन सकती है, वो दीन का काम कर सकती है, वो बहुत कुछ, वो तिजारत कर सकती है, वो पॉलिटिक्स में आ सकती है, सबकी इजाजत उसको है। और यही चीज पर मेरी आवाज रही और कई मौके, कई तकालीफ ऐसे आए इसको रोकने के लिए, मगर उसके बावजूद भी अल्लाह पे भरोसा करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात की तरफ से हमें इज्जत मिली। और मैं अल्लाह से आगे यही अर्ज करना चाहती हूँ कि इज्जत और जिल्लत के देने वाले अल्लाह ताला हैं। और मैंने सुना है कि इस किताब के उन्वान है और इंशाअल्लाह मैं ये शुक्रिया अदा करती हूँ कि बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए मेरी एक जिंदगी की जो सारी तस्वीर को हमारा मुतीउर रहमान अजीज भाई ने इसको तस्नीफ करने की कोशिश की है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि इस किताब में जितना है उससे ज्यादा मैं अमल करने की कोशिश करूँ और आइंदा की जिंदगी में और भी ऐसे 10 किताबें लिखने के लिए मैं एक मिसाल बन जाऊँ। और मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि रब्बुल आलमीन हम सबको कबूल फरमाए। और मैं तमाम यहाँ पर आए हुए हमारे मीडिया के बहन भाइयों को शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस खुशी के मौके में आप भी हिस्सा लेने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो है यहाँ पर आए हुए हैं। और इंशाअल्लाह आइंदा इस किताब को हम पढ़कर देखेंगे और कई कई लड़कियों के लिए इंशाअल्लाह एक हिदायत का जरिया होगी, जिसको लड़कियों को दबा के जो रखना चाहते हैं
इस्लाम का नाम लेकर, तो उसके लिए एक सुकून बन जाएगी कि हर औरत ये समझ पाएगी कि आगे बढ़ने के लिए इस्लाम और हिजाब कोई आन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। जब वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो हर तरह से भी आगे बढ़ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मैं खासकर से मेरी माँ का शुक्र अदा करना चाहती हूँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो इतनी मेहनत करके जो हालात मुझ पर आए थे, उस वक्त मैं एक ही साथी मेरा था जो मेरी माँ थी, और सारे लोग भी पीछे हट गए या कुछ भी, तो मेरी माँ ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज मेरी माँ की जिंदगी में, मेरी माँ की जिंदगी में ये सब चीजें, मेरी माँ ये खुशियों को देख रही है, तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करती हूँ। और मेरी जन्नत जो मेरी माँ है, उस माँ का भी मैं शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ के कदमों के नीचे ही जन्नत है। तो हमारी माँ, मेरी माँ इतनी प्यारी माँ है कि ऐसी माँ दुनिया में शायद किसी के पास है नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, हर लड़की शायद ऐसा समझती है। हर माँ की ममता वैसे ही होती है, मगर हमारी माँ की जो ममता है वो एक ही बिल्कुल से बिल्कुल अलग है। हमारी माँ की मेहनतों का नतीजा, दुआओं का नतीजा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब मैं आई तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा मैं अल्लाह से दुआ करती थी, या अल्लाह मेरी बच्ची अकेली है, मेरी बच्ची की मदद करना, और मैं भी अकेली हूँ, मेरी मदद करना। तो कितना मेरी माँ ने जो है तरह तरह के तकलीफों को इस तरह से झेला है। जब मैंने पहले मेरी माँ को देखकर मैं मजाक करती थी कि मेरी माँ बहुत भोली है, मेरी माँ बहुत मतलब कुछ नहीं मालूम, इस तरह से हमेशा हमारी बहनों के कभी कभी मजाक करते थे। बाद में मेरी माँ की वो हिम्मत को देखकर, जो हर जय के सामने आना, मेरे लिए बात करना, मेरे लिए कोशिश करना, लीगल टीम से बात करना वगैरह सब कुछ भी देखकर, बाद में मैं आने के बाद में मेरी माँ को माफी चाहिए और बोली, मेरी माँ जो मेरे अंदर जो हिम्मत थी वो तेरी ही थी, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरी माँ को कुछ भी नहीं पता है। मगर मेरी माँ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं पता होते हुए भी सारी चीजों को हैंडल करने की कोशिश की। और आज मेरी माँ यहाँ पर बैठी हुई है इस प्रोग्राम में, और मैं मुफ्तीउर रहमान अजीज का भी शुक्र अदा करती हूँ कि उस माँ की बेटी की एक स्टोरी को उन्होंने तस्नीफ किया है, उस कहानी को उन्होंने तस्नीफ किया। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ही बड़ी खुशी हो रही है कि आज जो है जज्बा शाहीन के नाम से जो मेरी ज़िंदगी में ही मेरे नाम पर एक किताब लिखी गई। कई जगह पर ऐसे होता है कि जब ज़िंदगी ख़त्म होती है उसके बाद उनके बारे में किताब लिखी जाती है, मगर मेरी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब लिखी गई और मैं आज बहुत ही खुश हूँ। और मैं दुआ करती हूँ कि ये किताब हर लड़की के लिए एक हिम्मत अफजाई का सबब बन जाए, एक हिदायत का ज़रिया बन जाए, अल्लाह से करीब होने का एक ज़रिया बन जाए, अल्लाह से मोहब्बत करने का एक ज़रिया बन जाए, उसके साथ साथ दुनियावी चीज़ों में भी वो मोहब्बत करने का जो है उसका एक ज़रिया बन जाए। और इस किताब को लेकर जैसे मैंने कहा था कि मेरी ज़िंदगी का जो आगाज़ हुआ था ख़वातीन के हुकूक़ को लेकर, औरतों के हुकूक़ को लेकर 1998 था। तो लगभग 22 साल की जो मेहनत थी, मैंने सुना है कि इस किताब में लिखा गया है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ये किताब इंशाअल्लाह जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हो, मकबूल हो और लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया बनाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहते हैं इज़्ज़त देते हैं, जिसको चाहते हैं ज़िल्लत देते हैं। मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इसको कामयाबी फरमाए और जो इस किताब में लिखा गया है उससे ज़्यादा अच्छाइयाँ हमको करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। स्कूल्स चला रही थी तो सब लोग ये कहते थे कि तुम्हारे अम्मी जो है बड़े मासूम हैं, बड़े भोले हैं, आपकी अम्मी को कुछ भी नहीं पता। तो कभी कभी मैं भी वैसा ख्याल करती थी। जब मेरे ऊपर ये हालात आए, जब मैं अरेस्ट हो गई, जब मेरे ऊपर तकलीफ आए,
तो मेरी माँ ने जो वो परफॉर्मेंस किया है और मेरी माँ ने वो दुआएं की है, मेरी माँ ने वो चीज़ें की है, जब आने के बाद मेरी माँ ने सुनाई कुछ बातें तो मेरी आंखों से आंसू आज भी रुकते नहीं है कभी भी। कि मेरी माँ ने जब कहा कि बेटा मैंने अल्लाह से तहज्जुद में नमाज पढ़ती थी और ये दुआ करती थी कि अल्लाह मेरी बच्ची का और मेरा मददगार तू ही है, तेरे सिवा कोई मददगार नहीं है, अल्लाह तू हमारी मदद फरमाना। दुनिया मेरी बच्ची पर कई इल्ज़ामें लगाती है मगर मेरी बच्ची वैसी नहीं है। ये मेरी माँ कई बातें जो है मुझे बताई, तो उस वक्त में मैंने ये महसूस किया कि जो चीज़ मैं महसूस करती थी वो चीज़ गलत थी, कि मेरी माँ को कुछ नहीं मालूम, मेरी माँ बहुत भोली है, बड़ी मासूम है, मगर मेरी माँ की ही ताकत थी जो मेरे अंदर आई थी, जो मेरी माँ का ही जज्बा था जो मेरे अंदर आया था। तो इसके ये 2 साल 2.5 साल के मुद्दत के बाद मुझे ये बात को पता किया और इस बात को जो है मैंने महसूस किया। नहीं तो हमेशा मेरी अम्मी को मैं मजाक करती थी कि मेरे पास जो ताकत और हिम्मत है वो मेरे अब्बा की है, तुम्हारी नहीं है, ऐसे बोलती थी बार बार। तो जब मैं अम्मी के जो जज्बे को देखी और वो काम को देखी कि सारे लोग साथ छोड़ने के बाद भी मेरी माँ जो है साथ नहीं छोड़ी और मेरी माँ फिरती रही। कभी कभी मैं बताती थी भी कि अम्मी आप इतने दोपहर में यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, आप आते ना और अगले वीक में आते तो क्या हो जाता। तो मेरी माँ कहती थी नहीं बेटे, अगर मुझे ये है तो जो है मैं ये दीवारों के पास पड़ी हुई रह जाती थी, मैं कभी भी नहीं जाती थी। तो वो माँ की जो मोहब्बत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जिक्र किया है वो मैं पूरा के पूरा महसूस की। इसीलिए मैं आज खुशी महसूस करती हूँ कि उस माँ की बेटी की एक किताब लिखी गई, उस माँ की बेटी की जिंदगी के बारे में एक किताब लिखी गई। तो वो माँ भी जो मुझे पैदा करके बड़ी की और आज तक जो साथ दे रही है वो माँ है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुनिया की हर माँ के लिए यही दुआ करना चाहूंगी कि वो अपने बच्चों के लिए बड़े मेहरबान होते हैं। तो मैं सारे लड़कियों को, लड़कों को, सबको यही मैसेज देना चाहूंगी, वो अपनी माँ की सबसे ज्यादा कदर करे, माँ बाप की कदर करे, मगर माँ की कदर सबसे ज्यादा करे, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे हमारी जन्नत होती है। माँ ही हमारे लिए सब कुछ होती है। माँ को जो खुश रखता है अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उससे खुश और राजी हो जाते हैं। जो माँ बाप को नाराज रखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उससे नाराज और नाखुश हो जाते हैं। तो आज के ज़माने में, आज के माहौल में माँ बाप की कदर बहुत कम होती चली जा रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया। हर बच्चा, हर लड़की मोबाइल पे मशगूल होते हैं, कभी माँओं की बात का जवाब नहीं देते, कभी उठने पर, हर चीज़ पर। तो मैं यही उन सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि एक माँ होती है, एक ऐसी बच्ची को, ऐसी बेटी को जन्म देती है और बनाती है जो लाखों के जिंदगियों के लिए जो है एक नफामंद साबित हो। और भले जिंदगी के अंदर इंसान को जो भी तकलीफें आते हैं, जो भी मुश्किलें आते हैं, वो हमारे लिए एक सबक लेकर आते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ था। तो इतनी बड़ी तकलीफ और इतने बड़े बड़े इल्जाम लगने के बाद भी मुझे अल्लाह पर भरोसा था कि मैंने ऐसा नहीं किया है तो कभी भी ये प्रूफ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मेरा अल्लाह मेरे साथ है, क्योंकि मैंने कभी ऐसे काम नहीं किया है और मेरे दिल में तक ऐसी बातों को मैं सोच नहीं देती जो इस तरह के इल्जाम मेरे ऊपर लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तारीख गवाह है इन बातों की कि जिन लोगों पर भी जब इल्जाम लगते हैं तो अल्लाह चाहते हैं तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह हटा देते हैं और इज्जत और जिल्लत जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन देने वाले हैं। मगर मेरे सारे सपोर्टर भाइयाँ जितने भी हैं, मेरे अंदर होने के बावजूद भी मेरी जुबान उठाए। और ये बुक को उस वक्त में लिखी गई जब लोग पूरी मेरी मुखालिफत कर रहे थे, लोग पूरे मेरे बारे में इल्जामें लगा रहे थे। उस वक्त में मुतीउर रहमान भाई ने जो है बुक लिखकर जज्बा शाहीन करके जो है एक जज्बा देने की कोशिश किया। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से जज्बा शाहीन जो है हर लड़की के लिए एक जज्बे का सबब बन जाए। अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम। हमें गुमान भी नहीं था कि मैं इतना बड़ा काम कर पाऊँगा, लेकिन कमाल उस शख्सियत की है। सबसे बड़ी बात तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे तौफीक दी, मैं ये काम कर सका। लेकिन जब मैंने कलम उठाया तो मेरी कलम रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि 500 सफ़हात जो है मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन काम करते गया यहाँ तक कि वो 800 सफ़हात पर जा करके वो चीज़ मुकम्मल हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब जो है 800 सफ़हात हैं, इसमें 11-12 अबवाब हैं और इसमें लगभग 500 मज़ामीन हैं जो अलग अलग नज़रिए पर और अलग अलग चीज़ों पर पेश किए गए हैं। सबसे ज़्यादा 150 मज़ामीन आलबा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की शख्सियत पर है, जो कि उनकी कद्दो काविश, उनकी जबत मुसलसल, उनकी हरकत व सकनात जितनी भी हैं, उनकी ज़िंदगी के हाल व किरदार जो हैं उस पर 150 मज़ामीन हैं। और इस तरह से कुल मिला करके जब आपके हाथों में किताब आएगी आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इसमें हर वो चीज़ मैंने इन्हसार करने की कोशिश की है जो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा से ताल्लुक़ रखती है।
जब आप बायोग्राफी लिखी इतनी बड़ी, क्या उसमें अव्वल जमात से लेके आखिर स्टार्टिंग? जी हाँ, इनकी आपा अलमा डॉक्टर ज़हरा शेख साहिबा की ज़िंदगी की पैदाइश से लेकर के 12 साल की उम्र से जो हम लोग उनकी जुहद मुसलसल को सुनते हुए आ रहे हैं, वहाँ से मैंने लिखना शुरू किया है कि वहाँ से उनको किन सूबतों से, किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा। उन मुश्किलात को तहरीर करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको बंद कर दिया है। दिनों में जब आलमा डॉक्टर ज़हरा शेख साहिबा अभी रिहा नहीं हुई, जब वो जेल में ही थी, यानी कि 31 दिसंबर 2020 को मैंने इसको लिखना बंद कर दिया था और इसको छपाने के प्रोसेस में लग गया था। तो इनकी पूरी ज़िंदगी को मैंने इसको इन्हिसार करने की कोशिश की है। क्या चीज़ें आई हैं, क्या चीज़ें छूटी हैं, इंशाअल्लाह ताला वो चीज़ें मुबस्सिरीन हज़रात देखेंगे, मीडिया के लोग देखेंगे। पब्लिश किस तरह किधर किया जाएगा? ये दिल्ली में मैंने पब्लिश किया है। मेरी ख्वाहिश थी कि इसको दिल्ली में इजरा किया जाए, लेकिन आलमा डॉक्टर ज़हरा शेख साहिबा की का वक्त नहीं मिल सका, उनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा है, तो फिर उसको हैदराबाद में रिलीज़ करने का प्रोग्राम बना।